नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो बड़ा जबरदस्त वीडियो है और थोड़ा मेरे टॉपिक से हटकर है, मतलब जो नॉर्मली मैं वीडियोस करता हूं उससे थोड़ा हटकर है। ये एक विदेशी महिला हैं और ये भारत में रहती हैं और इन्होंने बताया कि इंडियन विलेज लाइफ वर्सेस सिटी लाइफ, ये दोनों जगह रही हैं, काफी लंबे टाइम से रह रही हैं। तो बहुत आसान अंग्रेजी है, आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आएगी तो मैं धीरे धीरे बताता भी रहूंगा। चलिए वीडियो देखते हैं। I live in an Indian village, though perhaps not the type of a village that you imagine. Well, yes, there are plenty of cows running in the streets, and there is a real danger of a jackfruit or a coconut falling on my head, even right now actually, because I'm sitting under the jackfruit tree. The milkman just right now is riding a bicycle of my mother's age, and the house owners here still wake up at 5 a.m. to inspect if there are any lost snakes in the garden. I've seen quite a few already. Things here are slow, and unless it's a New Year's Eve, it's also pretty quiet. I sleep and wake up early, ride my bicycle around, take it easy if service providers don't show up or don't show up for 2 weeks, or if delivery gets lost. And I already have a skill when I'm smiling at a 3-inch cockroach when it's jogging across my living room. Hey baby. There've been quite a lot of creatures also jogging across my pillows every other day. I spent in my rural paradise 8 months without leaving, and this type of life became a norm. I almost forgot that there is a totally different world and is just 1 hour away by plane. तो 8 महीने ये करीब रही हैं गांव में, बिल्कुल देहात गांव कहते हैं। आप देख रहे हैं गाय बैल कॉकरोच सांप सब है वहां पे। मुझे बड़ा पसंद है गांव भाई, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही मुझे बड़ा पसंद है, मुझे गांव में रहना बहुत पसंद है, वहाँ की स्लो जिंदगी बहुत पसंद है। देखिए मैं अभी शहर में हूँ, लेकिन मैं शहर कभी मुझे अपना सा नहीं लगा, कभी नहीं लगा मुझे अपना सा। जितना अपना मेरा गांव है, मैं यहाँ पे लेटा भी हूँ ना तो अपनापन सा लगता है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं, घूमने की बहुत जगह हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे, पता नहीं क्यों। आप लोग बताइएगा, कहिएगा, आप लोग अपने एक्सपीरियंस कहिएगा। I came to Hyderabad after 10 years. यार ये तो हैदराबाद है बॉस, चारमीनार, वन ऑफ माई बेस्ट सिटी। मैं यहाँ पे रहा हूँ 3 साल और मुझे इस शहर से बहुत ज्यादा प्यार है, हैदराबाद से बहुत ज्यादा। यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ का खाना बड़ा जबरदस्त है यार, और बड़ा जबरदस्त मतलब यहाँ का माहौल बड़ा जबरदस्त होता है यार। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मुझे यहाँ के लोगों की ईमानदारी बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। मतलब इतने शहरों में मैं रहा हूँ, इतनी जगहों पर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के जैसे लोग मुझे नहीं मिले आज तक, और इसलिए ये शहर मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मतलब मुझे दिल्ली नोएडा भी इतना पसंद नहीं जितना हैदराबाद पसंद है। खैर मेरे दर्शक जानते हैं कि मुझे हैदराबाद से कितना प्यार है। In my memory, it was a city of ancient forts, nizams, legends, and the best biryani in the country. But this time it felt like I teleported myself to a completely different country. As far as I could see, there were skyscrapers or building sites for the skyscrapers that are yet to come. There were expensive cars, shopping malls, fitness studios, set among the polished apartment complexes. For my stay, I settled in one of them. The first day I was really confused. I was living in a self-sufficient town, a small one, but a really self-sufficient town. Everything was available 1 call away. Nothing needed an effort to set up. Everything was within walking distance: fitness, shops, jogging paths, kindergarten, playground. What was not there would come at a cost of 1 WhatsApp message. And the biggest joy of the coastal village dweller, there were no interruptions with the internet. I walked with my daughter this island of stability in and out, admiring flowers, enjoying clean pavements, smiling at kids passing by on their small but very neat bikes. The second day,
I couldn't sleep quite well. There were no ants crawling on top of me, no lizards falling from the ceiling, no wildcats scratching the roof with their claws. These were the sounds I already got used to. Like a peacock screaming right now, if you can hear. On the third day, I woke up and had my tea on the balcony, watching the same people playing tennis on the court with the same friends and doing morning yoga on the lawn. I watched Swiggy delivery guys flocking in during breakfast time and set into my own work routine. I dropped my daughter at the playground, went to a pool, shopped vegetables for dinner, and then returned back to my work. Before sleep, I saw Netflix streaming in the windows of the neighbors. Well, not that I was stalking them. And then the next day, and the next day, and the next day, and the next day repeated. One after another. I was in a Groundhog Day until I realized that in a week I haven't left the apartment complex because, frankly speaking, I didn't need to. And that was the moment when my nostalgia crept in. I started missing blocked roads by the cows and bullfights, birds choir every morning just before the sun goes up or just before I need to record a video. I started missing village walks to school, wilderness in my own house, endless cycling routes, when you are never sure where they actually lead you. Big city offers comfort, but it also takes. बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि बड़े शहरों में आपको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन शायद उससे कहीं ज़्यादा वो शहर आपसे ले भी लेता है। ये बात सच है। हम लोग रहते हैं यहाँ पे, मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, जो मेरा घर है यहाँ पे, तो मैं इनको कहता हूँ माचिस के डिब्बियाँ। मेरे फादर कभी कभार यहाँ पे आते हैं गांव से ना, कभी कभार वो कहते हैं कि यार ये यहाँ पे आने का मेरा मन नहीं करता। पता है क्यों मन नहीं करता? कहते हैं कि यार तुम्हारा पूरा घर जो है वो 1100-1200 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और वहां पे सिर्फ मेरा जो सामने की घर के सामने की जो लॉन कह लीजिए वही 2000 स्क्वायर फीट का है। तो बाकी तो मैं क्या बताऊं आपको। तो ये बहुत बड़ा फर्क है गांव और शहर में। शहर में मेरे पड़ोस में जो रहते हैं या बाकी जो लोग रहते हैं उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। पड़ोस इन द सेंस कि मतलब नहीं कह रहा हूँ कि मेरे जो बिल्कुल पड़ोसी हैं बिल्कुल मतलब है, हम लोग आते जाते रहते हैं। मतलब इनफैक्ट जो यहाँ पे है किसके पास टाइम नहीं है, टाइम की बहुत कमी है, भागम भाग में लगे रहते हैं। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि फुर्सत ही नहीं है उनके पास, अपने हेल्थ के लिए भी फुर्सत नहीं होता, काम ऑफिस घर में ये वो पर। मैं किसी तरह थोड़ा बहुत हेल्थ के लिए, मैं थोड़ा बचपन से रहा हूँ खेलने कूदने में, तो अभी भी खेलता कूदता रहता हूँ, तो थोड़ा फिटनेस में बरकरार रखता हूँ। लेकिन ये फर्क है, गांव में आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, अपने खेत की चीजें उगा रहे हो, आप खा रहे हो। यहाँ पे कहाँ से चीजें आ रही है, कैसे उगाई जा रही हैं, कौन से पेस्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं आपको नहीं पता, जहरीली हवा में आप सांस ले रहे हो, गाड़ियां इतनी है, शोर इतना है, भागम भाग इतना है, वक्त ही नहीं है। यहाँ पे मुझे रहता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे, यार और वक्त चाहिए, कैसे जल्दी गुजर जा रहा है। जब गाँव जाता तो इतना सारा टाइम रहता है कि पूछे नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क है। Transition to a village life wasn't easy for me, I mind you. I took years to make it happen. I took years to make it possible. Building my remote business and learning how to organize my life in a way that I can live wherever I wish. But for me personally, it was worth it. Everyone has their own happy place. The city life is beautiful. Perhaps one day I'll move back. I too was born and raised in a city of 15 million people, but it's a plot for a completely different story. For now, I'm heading back to my village with a happy heart. तो चलिए वीडियो खत्म हो गया और आखिरकार कुछ टाइम इन्होंने शहर में गुजारा और फिर उन्होंने सारी व्यवस्था जो इन्होंने बताया मुझे कि वो सब कुछ वो फिर से वापस गांव चली गई हैं और गांव में ही जाके उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप, बाकी चीजें सब कुछ वहां पे गांव पे ही कर लिया, चीजों को मैनेज कर लिया। तो मेरे हिसाब से देखिए सबकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन मुझे लगता है कि गांव की लाइफ बहुत ज्यादा ईजी है और गांव की लाइफ में थोड़ी एक बहुत ना क्या कहते हैं कनेक्शन है लोगों के बीच आपस में। ठीक है, लड़ाई झगड़े पॉलिटिक्स हर जगह होती है, लेकिन गांव में थोड़ा अपनापन ज्यादा है। शहर में वो अपनापन नहीं मिलता। शहर के लोग आपको जल्दी अपनाते नहीं है, वो आप पर भरोसा नहीं करते, आपको शक की नजरों से देखते हैं। और गांव में ऐसा नहीं है, क्योंकि गांव में पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं तो लोग जानते हैं कि हाँ फलाने के बाबा वो थे तो फलाने के परबाबा वो थे, अच्छा तुम फलाने के घर के हो, तो सब जानते हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं।
बाकी जो वहाँ पर पर्व त्योहार होते हैं वो मिलना जुलना, या फिर जो शादियाँ होती हैं, कुछ कुछ घर में संस्कार होते हैं, वो जब करते हैं तो सारे गाँव को बुलाना मिलना, ये बेसिकली ये सब इसलिए किया जाता है कि लोग एक दूसरे से मिले, कनेक्ट रहें। शहरों में ये चीज़ बड़ी कम होती है और शहरों में ये चीज़ बड़ी बनावटी लगती है। बेसिकली यहाँ पर इसको भले आप लाइफस्टाइल कह लें, लेकिन पता नहीं मुझे ये लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन अब मजबूरी है, अभी चूंकि नौकरी थी, अब ये काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा हैं। गाँव में भी हैं तो गाँव में भी तैयारी कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि गाँव की तैयारी नहीं है मेरी। लौटना मुझे एक दिन मुझे भी गाँव में ही। और जो अपना घर बनवाया है मैंने, जो चीज़ें बनवाई हो, तो उसमें सबसे ऊपर मैंने एक बड़ा सा हॉल बनवाया है जो अपने स्टूडियो के लिए मैंने सोच कर बनवाया है कि आने वाले भविष्य में मैं उसे स्टूडियो में तब्दील करूंगा, बनाऊंगा और घर पे गाँव पे जाके अपने काम करूंगा। ये मेरी प्लानिंग है। अब देखता हूँ प्लानिंग में कितना सक्सेसफुल हो पाता हूँ। भविष्य की प्लानिंग बता दी मैंने आप लोगों को। तो मुझे शहर में रहना पसंद नहीं है। तो आप लोगों की अपनी राय क्या है? आप लोग शहर को ज़्यादा पसंद करते हो या आप लोग अपने गाँव को ज़्यादा पसंद करते हो? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।